Good morning. Today we will start the steam condenser. It is unit number 4 of your applied thermodynamics curriculum, and this is a very important topic as far as practical and industrial applications are concerned. And if you are preparing for your examination and semester examination, then also this is a very important topic. If you see the trend of last 3 to 4 years, mostly theoretical questions are asked from this topic. So there is a great scope to score well if you cover this topic in the examination, and you are advised not to leave the questions that are related to steam condenser. However, today we are not going to cover those theoretical details of the steam condenser. Instead, I will stick to the thermodynamics involved related to the topic, and after this lecture you will be able to solve the numericals that are asked in the examination. So before starting the numerical, let me tell you about the basic know-how of steam condenser so that you get the idea of basic vocabulary that are related to the topic. So let us start our discussion. As the name suggests, the steam condenser is nothing but a device that is used to condense the steam or water vapor. So basically it is a closed vessel heat exchanger. Now the condensation of steam back into water involves exchange of heat. That is why it is a closed vessel heat exchanger. So in the basic geometry, it is a closed vessel that contains hot steam, and a series of this tube passes through this cold vessel, and within this tube there flows the cold water. So this cold water is in contact with this hot steam, obviously not in direct contact, but indirectly this hot steam is in contact with this cold water, because in between this hot steam and the cold water there exists this diathermic boundary or wall. So when this cold water flows through this tube, this hot steam gives its heat to this cold water, and during the process of heat rejection, this hot steam converts into water, back into water. So this is the basic geometry or working of this steam condenser. There is nothing complicated in this. However, to accomplish its task with the perfection, we need to mount several other pumps and valves in this device condenser. So let me tell you about those pumps and valves that are additionally mounted on this. The first pump that we require is to take this condensate out of this vessel. So the first pump is called condensate extraction pump, and this condensate extraction pump is used to take out the water that has been converted by condensation process, and for that, to extract that water out, we need this condensate extraction pump. दूसरा जो हमें चाहिए होता है, that is air extraction pump. So this air extraction pump will extract out the air. Now the question comes into your mind, from where this air comes into this closed vessel. So you should keep in your mind that this condensation process takes place at a pressure that is lower than atmospheric. So if the pressure inside the vessel is below atmospheric, there is possibility to leakage of air from outside atmosphere. So during the process of condensation, बाहर से कुछ ना कुछ एयर अंदर लीक हो जाता है, और उस एयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक पंप की ज़रूरत होती है, जिसको हम एयर एक्सट्रैक्शन पंप कहते हैं. जैसे जैसे इस स्टीम का कंडेंसेशन होगा, ये स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा, इसके खाली जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ ना कुछ एयर, ऑल्दो ये पूरी तरह से टाइट सील्ड होता है, फिर भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू लीक इन. सो वी रिक्वायर दिस एयर एक्सट्रैक्शन पंप. द थर्ड इज हॉट वेल. जब हमने इसमें से कंडेंसेट बाहर निकाल लिया,
या वाटर बाहर निकाल लिया, तो उस वाटर को डायरेक्टली हम बॉयलर में नहीं भेज सकते। उसको पहले हमें एक हॉट वेल में स्टोर करना होता है। एक स्टोरेज, हॉट वेल एक टेम्प्रोरी स्टोरेज है जहाँ पे हम यहाँ से बाहर निकलने वाले कंडेंसेट को स्टोर करते हैं और उसके बाद इसको हम वापस पंप करते हैं बॉयलर में। तो तीसरा जो डिवाइस है जो हमें चाहिए होता है वो हॉट वेल है। चौथा डिवाइस होता है जैसे मैंने आपको बताया इज अ बॉयलर फीड पंप। एक बार हमने हॉट वेल में पानी इकट्ठा कर लिया, कंडेंसेट इकट्ठा कर लिया, इस कंडेंसेट को वापस हमें रीसर्कुलेट करना है और उसके लिए हमें इस पानी को या कंडेंसेट को बॉयलर में भेजना होगा, एंड फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर दिस बॉयलर फीड पंप। सो नेक्स्ट पंप इज बॉयलर फीड पंप। देन कम्स वाटर फीड पंप। मैंने आपको बताया कि ये जो ट्यूब है इनमें से कोल्ड वाटर सर्कुलेट होता है, फ्लो करता है, तो इस कोल्ड वाटर को हम रीसर्कुलेट करना प्रेफर करेंगे ताकि इसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। और इसके लिए फिर से हमें एक पंप चाहिए होगा जिसको हम वाटर फीड पंप बोलेंगे। सो बेसिकली ये जो 5th नंबर का डिवाइस है ये कूलिंग वाटर फीड पंप है जिसको हम रीसर्कुलेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस कई बार ये जो कोल्ड वाटर इसमें से फ्लो हो रहा है वो चूँकि इस हॉट स्टीम के कांटेक्ट में आने से गर्म हो जाता है और कई बार उसका कुछ पोर्शन इवेपरेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो मास ऑफ रीसर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर है वो कई बार कम हो जाता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक मेकअप वाटर पंप इस्तेमाल करते हैं। तो ये 6 नंबर का पंप है मेकअप वाटर पंप। इसके बाद जब ये ट्यूब में से वाटर बाहर आ रहा है तो ये बाहर आने वाला वाटर जैसा कि आप देख सकते हो गर्म होके बाहर आ रहा है जबकि अंदर उसको ठंडा होके जाना चाहिए था। तो बीच में जब इसको हम वापस रीसर्कुलेट कर रहे हैं तो वापस इसमें फीड करने के पहले हमें इसको फिर से ठंडा करना पड़ता है। उसके लिए हम एक कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी दूसरा कूलिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो अगला है 7th कंपोनेंट इज कूलिंग टावर। तो बेसिकली ये आपका एक लेआउट है स्टीम कंडेंसर का जिसमें 1 2 3 4 5 पंप्स हैं, एक कूलिंग टावर है। इसके अलावा एक हम स्टीम एक्सट्रैक्शन वाल्व भी लगाते हैं जिसको हम स्टीम रिलीव वाल्व कहते हैं। अगर किसी कारण से ये कंडेंसर वर्क नहीं कर रहा है, इनऑपरेटिव है, तो उस कंडीशन में हम इसके अंदर की स्टीम को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसके अंदर स्टीम इकट्ठा होता जाएगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम स्टीम रिलीव वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली स्टीम कंडेंसर इज नथिंग बट अ क्लोज्ड वेसल और अ हीट एक्सचेंजर accompanied by several pumps and valves। So ये इसका बेसिक वर्किंग है। अब हम चलते हैं इसके सीधे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट पे। हम इसके थ्योरेटिकल डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर मैं आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि ये तो पूछा ही जाएगा जनरल लेआउट ऑफ स्टीम कंडेंसर। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ स्टीम कंडेंसर क्या है, तो आप बताओगे कि ये जो मैंने आपको बताई है सरफेस टाइप स्टीम कंडेंसर है। दूसरा होता है जेट स्टीम कंडेंसर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर सबका एडवांटेज, ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, ये सब आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो हम सीधा चलते हैं इसके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट पे। तो ये जैसा मैंने आपको बताया स्टीम कंडेंसर जो है वो एक हीट एक्सचेंजर है। तो हीट एक्सचेंजर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ट्यूब्स बना रखे हैं। एक ट्यूब में से स्टीम फ्लो हो रहा है और दूसरा ट्यूब जो उसके कांटेक्ट में है उसमें से कोल्ड वाटर फ्लो कर रहा है। ये जो दीवार, बीच की दीवार है जो इन दोनों ट्यूब्स को सेपरेट करती है, एक डायथर्मिक वॉल्व है। डायथर्मिक वॉल्व मतलब यहाँ से हीट इधर ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब कुल मिला के ये थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। तो जब एक ट्यूब में से स्टीम और दूसरे में से कोल्ड वाटर फ्लो करता है तो स्टीम अपनी हीट कोल्ड वाटर को देता है और इसकी वजह से अपनी हीट लूज करने की वजह से स्टीम जो है वो धीरे धीरे कंडेंसेट होने लगता है और ये वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो इनलेट वाटर का टेम्परेचर मैंने TW1 बोल रखा है। जब ये पानी यहाँ से फ्लो करके बाहर निकलेगा तो स्टीम में से हीट लेके ये गर्म हो जाएगा और बाहर निकलने पर इसका टेम्परेचर TWO हो जाता है। तो ऑब्वियसली TWO जो है उसकी वैल्यू TWI से ज़्यादा होगी, TW1 से ज़्यादा होगी।
क्योंकि इन द प्रोसेस ये जो वाटर है, कोल्ड वाटर, ये गर्म हो रहा है, तो TWO विल बी लार्जर देन दिस TWI। इसी तरह से इनलेट स्टीम का टेम्परेचर TSI था, आउटलेट स्टीम का टेम्परेचर, सॉरी ये आउटलेट पे स्टीम नहीं रह जाएगा क्योंकि अभी कंडेंस हो चुका है, तो ये वाटर बन गया, तो आउटलेट वाटर का टेम्परेचर मतलब आउटलेट कंडेंसेट का टेम्परेचर TSO होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये हीट लूज कर रहा है और ये कोल्ड वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ड्यूरिंग द फ्लो कोल्ड वाटर गर्म हो जा रहा है इसकी हीट को लेके, तो ये हीट लूज कर रहा है, तो TSO जो है वो छोटा होना चाहिए TSI से। मतलब जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, स्टीम का टेम्परेचर कम होना चाहिए कंडेंसेशन के प्रोसेस में, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, इसलिए एक्चुअल प्रैक्टिस में TSO जो है वो TSI से छोटा नहीं होता, बल्कि TSO TSI के बराबर होता है। इसका मतलब है TSI और TSO का टेम्परेचर सेम है। यहाँ TS डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये इनलेट है स्टीम का। मान लेते हैं कि टरबाइन से बाहर निकलने वाला स्टीम जो था वो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम था, ऐसा हम अभी इमेजिन कर रहे हैं, मान लेते हैं। तो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम अगर टरबाइन से बाहर आ रहा है और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो फिर से पानी पे, तो कंडेंसर का काम है सिर्फ स्टीम को पानी बना के छोड़ना, ना कि उसको और ज़्यादा ठंडा करना। और ये 100% स्टीम 100% वाटर में जब कन्वर्ट हो जाएगा वो पॉइंट होगा ये, जहाँ उसका टेम्परेचर होगा TSO। लेकिन अगर हम ये TS डायग्राम ठीक से देखें तो हमें समझ में आएगा TSO और TSI दोनों ही टेम्परेचर सेम है, जिसको हम सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। तो 100% वाटर या 100% स्टीम दोनों का ही टेम्परेचर सेम होता है, जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ TSI और TSO अलग अलग टेम्परेचर ना लिख के हम दोनों को सेम टेम्परेचर से डिनोट करेंगे, और इसलिए हम बोलेंगे कि TSO जो है वो TSI के बराबर है। मैं TWI को सिंप्लिसिटी के लिए T1 कह रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर ऑफ इनलेट कोल्ड वाटर इज T1। सिमिलरली TWO को मैं T2 कह रहा हूँ, TSI को और TSO को दोनों को ही मैं TS कह रहा हूँ। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास 4 नहीं सिर्फ 3 ही टेम्परेचर्स हैं, या T1, T2 और TS। TS इज द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम, TI इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एंड T2 इज द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। तो ये 3 टेम्परेचर हमारे इस डिवाइस में होते हैं।